Good evening, ladies and gentlemen, respected principal ma'am, uh, committee members, respected parents, teachers, and honorable chief guest of today's event. First of all, on behalf of all IMS, I would like to welcome you to the Rashtriya Poshan Ma 2021 Parents Teachers Meeting from IMS. First, a warm good evening to all of you. So parents and the teachers, as we know that this is a national event that is being organized and celebrated since 2018. This was an event started by our Honorable Prime Minister in the year 2018 in order to eradicate the malnourishment or undernourishment that can be seen in various children. Then again, we have a lot of other problems also that is seen in adults, like anemia in case of teenagers and pregnant ladies. Just a lot of these problems occurring due to nutritional not getting proper nutrition. In order to eradicate this and to spread awareness about nutrition, the Government of India is organizing this event. So the Government of India has informed all the schools to begin an event to educate and to make aware the children, the parents about the importance of nutrition. So that's why we are all here. So I hope I'm not taking much time or making you bored. So very soon we are about to start our event. So I guess all of you are ready. So first of all, let's welcome all the members that we have here. Okay. So before welcoming all the members and the chief guest to today's event, we'll start this event with a word of prayer, because as we know, in order for any event or any action to be successful, we need the blessings of God. So in order to start this event and make it a successful one, I would like to request one of our teacher, Anil sir, to start the event with a word of prayer. Let us small prayer. The loving Heavenly Father, as we gather this evening, Lord Jesus, to meeting regarding Rashtriya Poshan, Lord Jesus, Lord, we are here to discuss about the malnourished children, Lord Jesus, be with us. As we discuss the topic and getting deeper into that topic, Lord Jesus, help us to understand, Lord. Bless each and every word that we discuss here, Lord. We commit the entire program in your mighty hands, Lord Jesus. Be with us and guide us. That is small prayer in your mighty name. Amen. Thank you, Anil sir. We already feel a little bit blessed for the words of prayer that you just said. Okay, audience, I would like to pay attention to a small sentence that I saw in a hospital. Okay, the line goes like this. It was mentioned that we treat, but he cures. It's a clear resemble. It's a clear resemble that doctors, they treat us. They treat us of our problems, but curing is with the hand of God. So in order to remove this problem that our country is facing right now, we surely need the blessings of God. So without wasting another time, I'd like to request our principal ma'am to provide the welcome address for today's program. Good evening to you all. On behalf of our IMST school, it is my privilege to welcome you all for the program Rashtriya Poshak Ma 2021.
First of all, I welcome our chief guest, Dr. Susan Remopal, BBS from CMC College, and Pathology from Pulmonia Medical College, Hyderabad, Usmania Medical College from Hyderabad, and PGD in Family Medicine from CMC, who has given her valuable time with us to share the views about this Rashtriya Posha Month. So from my heart, I thank her and I welcome her for the program, because whenever we call her for any program in our school, she is ready to give her valuable time for us. So once again, I welcome her. And then it is my pleasure to welcome the President of Parent Teacher Association, Mr. Kandeshwar, who, when we approached him, he happily said that we will arrange the Parent Teacher Association, and through the program, through that we can arrange program for Rashtriya Posha Month. So I give my sincere thanks to Mr. Kandeshwar, and then the members of Parent Teacher Association, because they are from backside, they give their suggestion and ideas for the development of school. So I welcome the members of Parent Teacher Association. And parents, next, without you, without you are the main stone for our school. So I welcome, it is my pleasure to welcome all the parents, those who have accepted our invitation and have given your precious time with us to join with us, with your children, with our IMST school to celebrate the Rashtriya Posha Month 2021. So on behalf of our IMST school, I welcome all the parents who have come for the participation in the program. And then next one, we are so happy that our students, though we are unable to meet them physically, through online, we are able to contact them, we are in touch with the children. So it is my pleasure to welcome all the children for the program. So I welcome all the IMST students. Those who joined in the program, I welcome you all. And then I welcome all our teachers who are helping in the program, as well as who gave their valuable suggestion, ideas for the success for the program. So I welcome all the teachers on behalf of our IMST school, all the teachers, non-teaching staff, and all the well-wishers of our IMST. I welcome one and all once again. And then actually it gives me an immense pleasure to adhere the circular of the CBSE office to enrich you all about the wish of the government. The government has advised us to take care about the underprivileged children for their recognition in the community, and advised us to use the school children by enriching them with social concern. As you all know, is committed to give good academic education and also spiritual commitments. Now the government expects us under the program to commit the children by engaging themselves to mingle with underprivileged children, to use them in social activities. These are the following expectations of the government. Point 1, helping children to plant trees and encouraging them to have kitchen gardens, etc. And then encouraging them about their future studies, etc. For this, the cooperation of parents and young teachers are very much needed. For this occasion, we encourage the parents to allow their children to participate and help the government's bid. I thank you all for your cooperation and welcome you all on behalf of IMST school and to share your valuable suggestion. Once again, I welcome you all on behalf of our IMST school. Thank you. Thank you, Principal Ma'am, for welcoming all of them. It's such a huge privilege to have a renowned doctor in our midst who can advise well. And this is an issue, medically very important to take advice from a doctor. Then again, our parents, teachers, committee members, school committee members, they are also here. So they're the backbone of this school. So thank you, ma'am, for welcoming all of them. Now, okay.
So make this event little bit more entertaining. Okay. So I know some of you might feel a little bit bored because a lot of speech going to come. Okay. Many people are going to say a lot of things. So in order, before you get bored up to a higher level, let's make this event a little bit entertaining. So we have a special song performed by our teachers. So be ready. I'd like to welcome the teachers and to entertain our audience with a song. Thank you, dear teachers. Okay, so I'd like to invite, okay, so audience, can you hear me properly? Am I audible? Aryan, Ananta, Narayan, Rani Jain. That's a good one. Okay, so we're getting a constant message that there's some audio issues is going on. Well, I would like to say that due to some network issue, problem from your side, you're unable to hear it. Okay, you can follow this event on YouTube also. Now, so just now our teachers, they performed a very good song which has a good message within it. Okay, I'm sure most of you would have got the message. It is mentioned like Sahi Poshan Desh Roshan. Okay, the message is like when all of them get good nutritional food, the country is sure to develop. And that's one of the chief aim of all the Indians. Okay, so that's a hidden message of behind the poem. Now we are about to hear some words of God about this concept. So our next event will be Bible reading by Mesak sir. So I would like to request Mesak sir to come in front of it, in front of the camera. Dear students and parents, I wish to read a portion from the Holy Bible that is very relevant to this particular theme. So it is chosen from
Matthew chapter 14, and the topic is feeding the 5,000. Feeding the 5,000, let me read it. When Jesus heard it, he departed from there by boat to a deserted place by himself. But when the multitudes heard it, they followed him on foot from the cities. And when Jesus went out, he saw a great multitude, and he was moved with compassion for them and healed their sick. When it was evening, his disciples came to him, saying, "This is a deserted place, and it is already an hour late. Send the multitudes away, that they may go into the villages and buy themselves food." But Jesus said to them, "They do not need to go away. You give them something to eat." And they said to him, "We have here only 5 loaves and 2 fish." Jesus said, "Bring them here to me." Then he commanded the multitude to sit down on the grass. And he took the 5 loaves of bread and the 2 fish, and looking up to heaven, he blessed and broke and gave the loaves to the disciples. And the disciples gave them to the multitudes. So they all ate and were filled, and they took up 12 baskets full of fragments that remained. Now, those who had eaten were about 5,000 men, besides women and children. In this portion is particularly selected for that one line that I want to highlight. It is mentioned, Jesus said to them, "They do not need to go away. You give them something to eat." So even in our neighborhood, there are a lot of people who are without proper food, a lot of small children, malnourished small children without food. They need not wander here and there. They need not go away. We can give them food. If we take care of them, there is no need for them to go here and there. So I want to read that word once again. They do not need to go away. You give them something to eat. So I want to encourage everyone listening to the speech, that I want to remind a particular thing called "My neighbor is my responsibility." If you see anybody suffering from hunger or malnutrition or malnourishment, it is our duty to take care of them, so that they need not get worried, they need not go away, they need not wander anywhere. We can give them food. So this is my request to all the students and all the parents. So it is our responsibility. At least we cannot help everyone. We cannot help every poor people, everybody in the Malkangiri. But at least we can help those who are nearby, those who are in our neighborhood. Thank you. Thank you, Mr. Sir, for sharing with us the words of God about this. What is the importance of nutrition in our day-to-day life? Okay. Well, nearly all of them, all of the great people, they do agree with that. Okay? That is, nutrition is highly essential. Okay. The great quotation which involves our character, it says that if money is lost, nothing is lost. But if health is lost, something is lost. So the next line, it goes like, if character is lost and everything is lost. But here I would like to emphasize on the second one, that if health is lost, something is lost. Okay, that is, yeah, that's one of the key point here. Why? Because money, means generally what happens with us in common, we work hard. Okay, when we are energetic, when we are young, we work hard to gain more and more money, and we are working. We pay so much attention for that. Okay, for getting more money, that we neglect our health.
So ultimately what happens? When we become little bit of old, we suffer from a lot of disease, a lot of problem, and all that money what we earn in our young age all goes for, in the treatment. Okay, so what is the use of working so much hard if all the money has to be paid for treatment? Okay, so that's why it's also a message that we have to pay attention towards health. It's one of the key things that is necessary. Now, it's about time to hear or listen to our chief guest. As I have told you earlier, our chief guest is also a doctor. Okay? So, and it's an important thing to take advice from a doctor regarding health related activities. Okay, so now I would like to request our chief guest, Susan ma'am, to be here. Okay, and advise us. Namaskar. I welcome you all to this session. Can you see the screen? Today we are celebrating Rashtriya Poshan Maah from IMST school. This is about creating awareness on health and nutrition. If we look at the history of this Poshan Abhiyan, it is a national nutrition mission. It was launched in March 2018 by our Prime Minister, Mr. Narendra Modi. The main target was to improve the national nutritional status of children up to 6 years, adolescent girls, pregnant women, and also lactating mothers. ପିଲାମାନେ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଯୁବକ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ ଗର୍ଭିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ ଆରେ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବା ମା ମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ ଏଟା ଆରମ୍ଭ କରା ହେଇଥିଲା। तारो टार्गेट हेतिला कि हेउ अछि कि लो बर्थ वेट बेबीज रो संख्या को कमाइबा पाए तापर स्टैंडर्ड छोटो पिला माने ग्रोथ नो थिला पिला मानकर संख्या को कमाइबा पाए अंडर न्यूट्रिशन और एनीमिया को कमाइबा पाए एटा 3 वर्ष भितरे करबा पाए आरंभ करा हेतिला। एबे 2021 रे अछु ए वर्ष 3 वर्ष हेरि जिवो। मात्र हमर देश हमर मालकानगिरी रो परिस्थिति हमें देखिले डिसेंबर 2006 रे मालकानगिरी 200 पिला मानक तारो 7 पिला माने अंडर वेट पिला माने हे करे थिबाटा रिपोर्ट करा हेतिला। तापरे 100
जिल्लारे मालकानगिरी थर्ड लेवल रे माने malnutrition माने कुपोषण रे 5 वर्ष तले पिला मानकर मध्य रे थर्ड लेवल रे थिला सेटा केते माने एते malnutrition हमर जिल्ला रे रही अछि एटा कोआ हेउछि कि 1000 पिला माने प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष तले पिला माने प्रत्येक वर्ष मरी जाउछंती और ए वर्ष जुलाई मास रे गोटे रिपोर्ट आस्तिला जोटारे कुपोषण रो परसेंटेज 51% मालकानगिरी रे अछि करके बेसी malnutrition हमरो जिल्ला रे अछि तो हमें ए विषय रे जानिबा को बेसी आवश्यक अछि सेटा पय भुवनेश्वर तारो गोटे योजना आरंभ हेछि malnutrition कुपोषण विरुद्ध रे मालकानगिरी जिल्ला रे आरंभ करा हेछि तो एही प्रोग्राम रो आमे कुकु विषय आमे सिखिबा बोले हेल्थ माने स्वास्थ्य माने तार अर्थ कोन पोषण माने अर्थ कोन मोर छुआ बोल हेल्दी अछि कि स्वास्थ्य रूप रे बोलो अछि कि से कम स्टैंडर्ड अछि कि नै तो कम वजन जगह रे अछि कि तापरे बैलेंस डाइट माने तार अर्थ कोन तापरे मो बैलेंस डाइट मोर पिलान को मु केमति दे पारबी से विषय रे हमें देखिबा तो फर्स्ट विषय हमें आस्छु हेल्थ रो अर्थ विषय व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्थ रो WHO डेफिनेशन हमें देखिले इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबीइंग एंड नॉट merely absence of disease or infirmity माने शारीरिक भाव रे मानसिक भाव रे आरि सामाजिक भाव रे से माने बोलो हे करिते बाटा माने गुटे बीमारी नाय गुटे रोग नाय करके थिबाटा तारो से माने शारीरिक भाव रे मानसिक भाव रे आरि सामाजिक भाव रे बोलो थिबाटा अछि स्वास्थ्य न्यूट्रिशन पाखरे बोले हमें देखो कि हमें जो खाद्य हमें खाऊ जोटा हमरो बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जीवन और चालिबा पर जो प्रोसेसेस हेउची सेटा को हमें जो खाद्य नेउची सेटा होची न्यूट्रिशन तो हमें एटा सब देखिले 5 वर्ष तले पिला मानकर स्वास्थ्य विषय रे देखिले प्रथम रे हमें देखो कि पिला मानकर स्वास्थ्य आरंभ हेउची गुटे गर्भिणी स्त्री रो पेटु ठारो तो वेल बीइंग ऑफ ए चाइल्ड बिगिन्स इन द प्रेगनेंसी एटी गुटे छोटो वीडियो मो पाई अछि जोटा यूनिसेफ तारो करा हेची जोटा आपनो देखिबे अरे कमला आराम से सब ठीक तो है ना कितनी कमजोर लग रही है और इतनी थकी हुई भी लग रही है अरे राधा सब ठीक है तीसरा महीना चल रहा है तो थोड़ी कमजोरी और थकान तो हो ही जाती है तबीयत बिल्कुल ठीक है थोड़ी उल्टी हो सकती है लेकिन इतनी कमजोरी का कोई मतलब नहीं तो आ मेरे साथ चल माँ जी इसका तीसरा महीना चल रहा है आप लोग इसे खाने पीने का ख्याल नहीं रख रहे क्या खाना तो मैं खा ही रही हूँ ना अभी सुबह मैंने पेट भर नाश्ता भी खाया था रात की रोटियां बहुत बच गई थी तो उन्हीं में से 3 रोटियां और साथ में चटनी भी खा ली थी और दोपहर में भूख हुई तो दाल चावल भी खा लूंगी कमला ये क्या तुझे नहीं पता इस समय पे खाने पीने का पूरा ख्याल रखना चाहिए माँ जी आप तो जानती है ना हम इस वक्त जो भी खाते हैं वो सिर्फ हमारे लिए नहीं हमारे बच्चे के लिए भी होता है इस समय पर खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए जब मुन्ना होने वाला था ना तब मैं भी तेरी तरह लापरवाह थी मैं नहीं जानती थी कि क्या सही है और क्या गलत और इसका नतीजा तो तू देख ही रही है मैं नहीं चाहती कि तेरे होने वाले बच्चे के साथ भी ऐसा ही हो आप लोगों को पूरा ख्याल रखना चाहिए ताज़ा और पौष्टिक आहार खाए एक बात बता तेरा तीसरा महीना चल रहा है ना क्या तूने आंगनबाड़ी में अपना पंजीकरण करवाया उसकी क्या जरूरत है बहुत ज़रूरत है तू चल अभी मेरे साथ आंगनबाड़ी चल वहाँ शोभा दीदी तुझे सब समझा देंगे और तेरा पंजीकरण भी करवा देंगे चल भाभी रुको मैं भी चलता हूँ आप लोगों के साथ ये तो बहुत ही अच्छा होगा भैया पोषण की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की नहीं बल्कि पूरे परिवार की होती है खास तौर से पिता की तू बेटा जा मैं घर संभाल लूंगी जी माँ जा रहा हूँ क्यों कमला आजकल क्या दिनचर्या है तेरी खाने में क्या क्या लेती हो दीदी जी मैं सुबह 6 बजे उठ फिर घर का सारा काम करती हूँ जैसे साफ सफाई पानी भरना
गाय को नहलाना, खाना पकाना, कपड़े धोना, इन सब कामों में पूरा दिन निकल जाता है। अशोक, इस समय भी ये काम कर रहे हैं। तुझे ध्यान रखना चाहिए कि काम के साथ साथ इसे पूरा पूरा आराम भी मिले। और हाँ, इसके काम में तुझे भी हाथ बटाना है। याद रखना, कोई भी ऐसा काम जिसमें इसे वजन उठाना पड़े या इसे झुकना पड़े, वो इसके लिए बहुत हानिकारक है। गर्भावस्था में सामान्य से 1/4 ज़्यादा खाना खाना बहुत ज़रूरी है कमला। और साथ ही माँ का 10 से 12 किलो वजन बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वजन नहीं बढ़ता तो गर्भ में पल रहे बच्चे के मानसिक विकास पर बुरा असर पड़ सकता है। अब सुनो, खाने में क्या क्या खाना ज़रूरी होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, चौलाई, बथुआ वगैरह, और उसके साथ साथ लाल, पीले और नारंगी रंग के फल और सब्जियां जैसे गाजर, टमाटर, सीताफल और आम इन्हें खिला। और इसके साथ साथ दालें, मूंग की दाल, काला चना, राजमा, अरहर और साथ ही अंकुरित दालें खिला, जिनमें कई तरह के पोषक तत्व होते हैं। और साथ साथ ज्वार, बाजरा, गेहूं, रागी, जो कि आसानी से उपलब्ध होता है, तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद है। आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी, खासकर खाने के साथ, क्योंकि इनसे शरीर को बीमारी से लड़ने की ताकत मिलती है और खून की कमी भी दूर रहती है। लेकिन इस तरह का खाना तो बहुत महंगा होता है, हम कहाँ से इतना महंगा खाना? अरे ये सारी चीजें तो तुम्हारे आसपास ही मिल जाती हैं। और ये सब्जियां तो तुम अपने खेत में या गमले में भी उगा सकते हो। संतुलित मात्रा में आयोडीन वाला नमक ही खिलाना, जो बच्चे का मानसिक विकास करता है। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास साफ पानी ये जरूर पिए। और अपने आसपास सफाई का वातावरण रखना है। और ये सब चीजें जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब और किसी भी प्रकार की नशीली चीजों का इस्तेमाल न गर्भवती स्त्री और ना ही घर में कोई और करे। और कमला के खाना खाने से 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद तक चाय का सेवन भी नहीं होगा। तुमको हर महीने इसे जांच के लिए यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र में आशा एएनएम के पास लाना होगा। और अब से बच्चे के जन्म के बाद तक और जब तक बच्चा 2 वर्ष का नहीं हो जाता, तब तक कमला को पूरक पोषाहार मिलता रहेगा। और बच्चे को 6 माह से 6 साल की आयु तक पूरक पोषाहार व अन्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। और साल के 300 दिन पूरक पोषाहार मिलेगा, जो कि तुम्हें यहाँ से आकर लेते रहना पड़ेगा। आंगनवाड़ी की ये सभी सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जाती हैं। जी दीदी जी, मैं जांच के लिए ज़रूर लेकर जाऊंगा और पूरा आराम भी करने दूंगा। माँ को गर्भावस्था के दौरान अगर पोषण की कमी होती है तो कई मुश्किलें हो जाती हैं, जैसे समय से पहले प्रसव, बच्चे में कुपोषण, खून की कमी होना, बच्चे में मानसिक विकास की कमी होना। इसलिए माँ और पिता के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पोषण के बारे में सही सही जानकारी लें। समझ गया दीदी, मतलब बच्चे के स्वास्थ्य के लिए माँ का स्वस्थ रहना बेहद ज़रूरी है। आज से इसकी सारी खाने पीने की जिम्मेदारी मेरी। इस बारे में कोई भी और जानकारी चाहिए ना तुम्हें, तो कभी भी मेरे पास मिलने आ सकते हो। और ज़्यादा जानकारी चाहिए, तुम अपने ज़िले के डीएम के दफ्तर में भी जा सकते हो और उन्हें इस बारे में सुझाव भी दे सकते हो। और कमला, अगर तुम्हें लगे कि मैं अपना काम सही ढंग से नहीं कर रही हूँ, तो तुम मेरी भी शिकायत कर सकते हो डीएम दफ्तर में। अच्छा कमला, अपना ध्यान रखना। और राधा तू भी, क्योंकि सिर्फ बच्चा होने तक ही नहीं, बल्कि ये भी जरूरी है कि माँ अपने साथ साथ बच्चे के पोषण का भी ख्याल रखे। तो ସେଠି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ କି ଗର୍ଭିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୌଷ୍ଟିକ ଆହାର ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସେ ମାସ ମାସ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ଦରକାର ଅଛି। ଆହୁରି 2ଟା ଟୀକା ଦିଆ ହେଇଯିବ, ଟିଟେନସ୍ ଟୀକା ଦିଆ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ପୌଷ୍ଟିକ ଆହାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଆୟରନ ଓ କ୍ୟାଲସିୟମ ଟୀକା ଦିଆ ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର जो आयरन कम ହେଇଯିବ ସେଟାରେ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। तो मास मास चेकअप पर जीवाटा आवश्यक, मास मास बीपी और वजन चेक करवाटा आवश्यक, जो आंगनवाड़ी सेंटर रे
ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡି ସେଣ୍ଟରରେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଉ ଅଙ୍ଗନବାଡି ସେଣ୍ଟରରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବାଟା ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଠିରେ ଦେଇଥିଲା कार्ड को रखी करी माने डॉक्टर पाखरे आइला बेले माने जानि पारबे कि तुमरो ग्रोथ केमती होची तुमरो डेवलपमेंट केमती होची जानबा को सुविधा हेबो। सेकंड विषय हेउची पिला माने जन्म हेला परे प्रथम 6 मास एबे आका हम गीत सुनी थिलो जोटा प्रथम 6 मास पिला मानको और किछि देबा नाही जोटा मार क्षीर बिना और किछि देबा नाही पानी नाही दूधरो पानी नाही और किछि नाही ओनली मार क्षीर प्रथम दिन जे डिलीवरी हेउ फर्स्ट 1 आवर भितरे मां पाखरे मार स्तन को छुआ को रखिबाटा बेसी आवश्यक। ए विषय कहबा पाए गोटे वीडियो अछि जेटा आपण देखि करे देखि पारबे। अम्मा जी कहती है। बहुत बहुत मुबारक हो इंदु। जरा देखो तो, हाँ बिल्कुल मेरे रमेश पे गया है। वही नाक वही नक्शा, देखो देखो कैसे हंस रहे। ले चल लल्ला को अपने पास लेता है, मैं इसे शहद चटा दूं। ये क्या कर रही हैं आप? क्यों घुट्टी दे रही हो अपने पोते को? अरे शारदा, बच्चे को पहले घंटे में ही माँ का दूध देना होता है। बच्चे का पहला बचाव होता है माँ का पहला दूध। जी हाँ, अम्मा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये दूध बच्चे के लिए संजीवनी का काम करता है और जब ये बच्चे को दूध पिलाने लगेंगी तो उसमें दूध और ज्यादा बनेगा। जन्म के पहले घंटे में बच्चे को ये पहला बचाव तो मिलना ही चाहिए। चल बेटी इंदु, बच्चे को दूध पिला। खबरदार, अम्मा जी हमारे यहाँ औरत का पहला दूध देवता पे चढ़ता है। अरे शारदा, क्या कह रही है? माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे के लिए अमृत होता है। ये उसका पहला कुदरती बचाव होता है जो उसे जिंदगी भर बीमारियों से बचाता है। ये पौष्टिक होता है और शारदा, ये ही बच्चे को संक्रमणों से भी बचाता है। पिला बेटी। बिल्कुल नहीं, ये गंदा दूध मेरे पोते के मुंह में नहीं जाएगा। अरे उसकी तबीयत खराब होगी तो? अरे अकल से पैदल, ये गंदा दूध नहीं होता, बल्कि ये तो सबसे पौष्टिक और बच्चे को बीमारियों से बचाने वाला पहला कुदरती बचाव होता है। अभी डॉक्टर बहन जी भी तो यही कहकर गई हैं। चल इंदु बेटे, भगवान का नाम लेकर पिला उसे अपना दूध। तू मेरी बात तो मानेगी नहीं, मगर अपने पति की तो सुनेगी। आ रहा होगा मेरा रमेश, जो वो कहेगा वो ही करियो। अगर वो हाँ कहेगा तो दूध पिला दियो, और अगर उसने ना कर दी तो सीधे सीधे घर चल दियो। मैं इसकी बात का बुरा नहीं मानती, जरा गुस्से वाली है। सब ठीक हो जाएगा। तब तक तुम जरा मुझे ये बताओ कि माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे की पहली खुराक होना क्यों जरूरी है? क्योंकि पहला, ये दूध पौष्टिक होता है। दूसरा, ये बच्चे को संक्रमणों से बचाता है। तीसरा, ऐसा करने से माँ में अधिक दूध आने लगता है। चौथा, ये माँ के योनि से अधिक
खून बहने से बचाता है, और 5वां, ये बच्चे को अधिक ठंड से बचाता है। सही जवाब है माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे की पहली खुराक होना जरूरी। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे की पहली खुराक होना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये दूध पौष्टिक तो होता ही है, पर ये बच्चों संक्रमणों से भी बचाता है। ऐसा करने से माँ में अधिक दूध और ये माँ की योनि से अधिक खून बहने से बचाता है, और ये बच्चे को अधिक ठंड से भी बचाता है। ले आ गया मेरा बेटा रमेश। अब पूछ ले इसी से ही कि पहला गंदा दूध ये अपने छोरे को पिलाना चाहेगा या वही करेगा जो हमेशा हमारे परिवार में होता आया है कि औरत का पहला दूध देवता पर चढ़ता है। अम्मा, मिठाई लेकर आ रहा था तो आशा बहन जी भी मिली थी डॉक्टर के साथ। वो भी कह रही थी कि इंदू का पहला दूध जल्दी से जल्दी अपने मुन्ने को पिलाना चाहिए, वही हमारे मुन्ने के लिए अच्छा है। मतलब तेरी अम्मा जो कह रही है वो गलत और ये जगत अम्मा जो कह रही है वो सही? अरे मेरा क्या है लल्ला, मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली, तुझे जो करना है कर। अरे 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 शारदा, सुन तो। क्या देख रही है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम। मैंने गलतियां की है इंदू, तुझे 4 बातें भी सुनाई है, उल्टा सीधा भी कहा है, पर अब नहीं। भगवान ने हमें बच्चा दिया है, अब से मैं वही करूंगा जो तू कहेगी। पिला हमारे कन्हैया को अपना पहला दूध। अब एक और समझदारी की बात सुन, ये जो तू कन्हैया को अपने सीने से लगा के रख रही है और दूध पिला रही है, इससे जो तेरे और हमारे कन्हैया के बीच में प्यार बनेगा ना, उससे ही हमारा परिवार सुखी रहेगा। अच्छा, अब ये तुम्हें किसने बताया? ये तो मुझे पता था। अच्छा, और क्या, अब ये जब भी तेरा दूध मांगे तो उसे अपना ही दूध पिलाइयो, इससे तेरा ही दूध बढ़ेगा। और फिर भगवान ने कन्हैया के लिए ही तो तुझे दूध दिया है। अच्छा, अब मैं सब समझ गई मेरे डॉक्टर बाबू। लो, अब संभालो अपने कन्हैया को, थक गई मैं तो। ओ कन्हैया, वाह। दिल तो मेरा अभी भी रीति रिवाजों को ही मानता है। रीति रिवाजों को तो मैं भी मानती हूँ शारदा, पर जो बात लिए ही ठीक नहीं है उसे मानकर क्या फायदा। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध गंदा होता है, ये बात गलत है शारदा। बल्कि सही बात तो ये है कि माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध तो हर बच्चे के लिए अमृत होता है। अच्छा ठीक है, अब मैं अपने पोते को दिखाऊं? हाँ हाँ देखा। नमस्ते, मैं रवीना टंडन। आप कहेंगे मैं फिर आ गई ज्ञान देने। पर ये जीवन के संदेश आपके लिए भी उतने ही जरूरी हैं जितने मेरे लिए। तो आज का संदेश है, जन्म के बाद माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए। और माँ का दूध शुरू से ही पीने से माँ और बच्चे के बीच में जो प्यार बढ़ता है, उसकी दूसरी मिसाल तो दुनिया में कोई है ही नहीं। तो एथिरे हमें देखी अच्छु कि पिला माने माँ मानकर प्रथम दूध पिला डेलीवरी हेउ स्थान को पिला मानकर दरकार अछि। कोन भाई माने से क्षीर जोटा फर्स्ट 3 दिन रे जो क्षीर आसीबो सेटा गुटे टोपा थाओ 2 टोपा थाओ सेटा पिला मानकर अत्यधिक पोषण पाए
और बीमारी सुरक्षा पाए क्षीर देवा द्वारा माँ मानकर रक्तस्राव कमी जीव और सेटा माँ और छुआ मध्य जो प्रेम को बढ़ाइबो सेटा मिसा सेटारे से एटारे लाभ अछि और जेतकी क्षीर माँ देउ थिबे सेतकी क्षीर माँ को बड़ी करी आस्थिबो। एई समय रे और गुटे कथा कहबा पे चाहूची जे डिलीवरी हेला परे माँ को जेतकी प्रेग्नेंट थिला बेले जेतकी तांकर पौष्टिक आहार दरकार थिला डिलीवरी हेला परे मिसा संगे संगे तांकर भूख लागबो और तांको अधिक पौष्टिक आहार देवाटा निश्चय आवश्यक। अनेक ग्रह रे को देखो जे कि माँ माननको अरे बात से चावल से तो भात से तो नो भात माँ मानक दिया होची तापर वजन बढ़िबा नहीं सेटा बोल नहीं माँ को जेतिकी पौष्टिक आहार अपन देबे सेतिकी पौष्टिक तुमरो छुआ नहीं तो तुमरो नाती नतनी माने सेतिकी हेल्थी थिबे। नेक्स्ट विषय आमे पिला मानकर विषय को आसो एटा बेसी इंपोर्टेंट समय को मैं आसो जोटा प्रथम वर्ष रे मास पिला मानको अंगनवाड़ी सेंटर को नेबा को आवश्यक अछि कार्ड नै कर जीवा आवश्यक अछि तांकर वेट तांकर हाइट तांकर हेड सर्कमफरेंस सेटा मेजर करबारो आवश्यकता अछि। गुटे थर करिथिलाटा हेबो नै सेति पाई मासो पहले तांकर वृद्धि केमती हेउची सेटा जानबा को आवश्यक थिबो। एटा ऊपर थिला गुटे वीडियो में देखिबा। जो जीना इसे का नाम है अम्मा जी कहती है। नमस्कार अम्मा जी। नमस्ते नमस्ते, आप बैठ। माफ करना आने में देर हो गई, वो हमारे घर में भी कन्या जमानी थी ना तो इसलिए। मैं अभी अभी राधा से तेरे बारे में पूछ रही थी। देखिए 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 राधा हमारी सबसे छोटी कन्या को तिलक लगाओ, पैर धुलाओ, हलवा पूरी दो, है ना गुड़िया? लाओ अम्मा जी, गुड़िया को मुझे दो, मैं सब करती हूँ। लता, मुझे हमारी गुड़िया उम्र के हिसाब से कमजोर लग रही है। तू इसके खाने पीने का ख्याल रखती है कि नहीं? हाँ अम्मा जी, पर देखने में तो ठीक ही लगती है। नहीं। अच्छा बता, ये 7 महीने की तो हो गई होगी अब तक? 8 की अम्मा जी। मेरा दूध तो बराबर पीती है। खाली दूध? नहीं लता, 6 महीने के बाद बच्चे को माँ के दूध के साथ ऊपरी आहार देना भी बहुत जरूरी होता है। और तू इसे लेकर आंगनवाड़ी जाती है? जी वो वहाँ शबनम हर महीने सभी बच्चों का वजन करती है, तुझे बताती होगी कि गुड़िया ठीक से बढ़ रही है या नहीं। क्या हुआ लता, तू आंगनवाड़ी नहीं जाती? देख, तुझे ये तो पता है कि आंगनवाड़ी में कितनी काम की बातें पता चलती हैं। लता भाभी, ये गुड़िया का प्रसाद है। क्या हुआ लता, तू कहाँ खो गई? कुछ नहीं अम्मा जी। अच्छा मैं चलती हूँ। नहीं, ठहर, बोल क्या बात है? वो अम्मा जी, मैंने तो घर पे कई बार बोला कि मैं गुड़िया को लेकर आंगनवाड़ी चली जाती हूँ। हाँ। आस पड़ोस की औरतें भी तो जाती हैं। पर क्या कोई मना करता है? वो अम्मा जी, मेरी सास वो कहती हैं
कि ऐसे गुड़िया को आंगनवाड़ी ले जाने से और सबके सामने वजन करवाने से उसे नजर लग जाएगी। मैं तेरी सास की बात समझती हूँ, पर ऐसी बातों के चलते वो अनजाने में अपनी पोती का नुकसान ही कर रही है। 2 साल तक बच्चे का वजन तेजी से बढ़ना चाहिए। अब अगर हमारी गुड़िया हर महीने आंगनवाड़ी जाएगी तो बहन जी उसका वजन लेगी और फिर देखेगी कि वहां लगे चार्ट के अनुसार आकर बच्चे का वजन जरूर करवाना चाहिए। और ये लाल पट्टी हरी पट्टी क्या होती है? मैं समझाती हूँ। ये बच्चे का ग्रोथ चार्ट यानी कि बढ़त पट्टी है। बच्चे की उम्र के हिसाब से उसका वजन देखकर पता चलता है कि वो कौन सी पट्टी पर है। अगर बच्चा हरी पट्टी पर हो तो इसका मतलब वो एकदम स्वस्थ है। मैं तो कहती हूँ हर माँ को ये ग्रोथ चार्ट अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, 1 मिनट। लता, ये तुम्हारी गुड़िया का कार्ड है। यहाँ देखो, यहाँ गुड़िया का वजन उसकी उम्र के साथ हर महीने लिखा जाएगा। समझ गई? ये लो। हाँ, पर ये सब हर महीने बताएगा कौन? अरे गांव की आंगनवाड़ी बहन जी, जैसे अभी अभी हमारी शबनम ने बताया कि ग्रोथ चार्ट से ही पता चलता है कि बच्चे की सेहत ठीक है या नहीं, और अगर ना हो तो आंगनवाड़ी बहन जी बच्चे की माँ को समझाती है कि उसे क्या क्या खिलाना चाहिए, दिन में कितनी बार, यही सब। और एक बात का ख्याल और रहे, ये सारी चीजें बच्चे को अलग कटोरी में खाने को देनी चाहिए, चम्मच से। ताकि पता चले कि बच्चे ने कितना खाया है। हाँ। अब तुम मुझे बताओ कि बच्चे का वजन कब, कहाँ और कैसे करवाना चाहिए। 1, हर महीने आंगनवाड़ी में। 2, वजन करवा के कार्ड में भरवाना चाहिए। 3, वजन करवाओ तो आंगनवाड़ी बहन जी से पूछ लो कि बच्चा ठीक से बढ़ रहा है या नहीं। सही जवाब है, बच्चे का वजन हर महीने आंगनवाड़ी में करवाना चाहिए। वजन करवा के मातृ शिशु रक्षा कार्ड में भरवा लें और वजन करवाने पर आंगनवाड़ी बहन जी से पूछ लो कि बच्चा ठीक से बढ़ रहा है या नहीं। अपने बच्चे को बढ़ते हुए देखने से बड़ी खुशी इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए अपने बच्चे के विकास पर, उसके वजन पर पूरा ध्यान रखिए। आंगनवाड़ी जाकर नियम से उसके वजन और लंबाई का माप करवाएं और अपने सामने ही बच्चे का ग्रोथ चार्ट भरवाएं। ये बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा सही तरह से बढ़े तो आप भी निश्चिंत रहेंगी। So after seeing all this, we come back to the very important things, that as the child grows from 1 to 2, from the birth time till 2 years of age, every month the child has to go to an Anganwadi to check and get the height and weight marked on the chart, on the growth chart. The growth chart is different for girls and for boys. So झियो मानक पाए अलग ग्रोथ चार्ट अच्छे, पुओ मानक अलग ग्रोथ चार्ट अच्छे। तो सेटा अनुसार मासो से वजन और हाइट से कार्ड उपरे मार्क करवाटा आवश्यक जोटा आंगनवाड़ी सेंटर ने किया है। जो प्रत्येक गाँव रे आंगनवाड़ी होचंती केतेटा गाँव मिसी करे स्टाफ ने सोचंती, दया करे से सुजोग को मिस करंतु नाही। एटा हेला परे पिला माने कुपोषक परिस्थिति को न जीवा पाए और दुईटा विषय अछि जोटा डिसीजेस को प्रिवेंट करवाटा, माने रोग और बीमारी न आसवा पाए साहाय्य करवाटा, सेटा होछि टीका देवाटा। तो बर्थ टारो जन्म ठारो टीका दिया होछि। टीका बीसीजी होछि, पोलियो होछि, डीपीटी होछि, मासो 3 थर डीपीटी रो एटा होछि। तापरे 9 मास रे एमएमआर वैक्सीन होछि,
तापरे 1.5 बर्षरे डीटी करके होची तापरे 5 बर्षरे डीटी फिर से बूस्टर डोज रही जायसी दयाकोरी इम्युनाइजेशन प्रत्येक पिलामानंकु देबाटा पोस्टेज जिबार नाही एटा सहित हेपेटाइटिस बी रो न्यूमोकॉकल वैक्सीन मिसा बाहर आछि जोटा अंगनवाड़ी रे दिया होची सेटा आपण दयाकोरी निश्चय समय अनुसार नेबाटा आवश्यक। तो फोर्थ विषय कोन होची माने लुगर फॉर डिसीजेस को बीमारी हेउची सेटा को संगे संगे आइडेंटिफाई करी तापरे सेटा को ट्रीट करवाटा निहाती आवश्यक। डॉक्टर पाखे जाय करे ट्रीटमेंट नेबाटा निहाती आवश्यक। हमरो जिल्ला रे मलेरिया टाइफॉइड और एबे डेंगी ज्वर अत्यधिक भारे प्रबलित हे करी अछि दया करी जो ज्वर हेले ज्वर कम हेउने संगे संगे अपनो डॉक्टर पाखे ने तो हॉस्पिटल पाखे आसी करी अपनो ट्रीटमेंट इलाज करवाटा करिले पिला मानको आमे सहाय्य करि पार। एथिरे आमे देखो कि जने डॉक्टर जेमति कि वेट और हाइट विषय रे ताके एकटा विषय को जंतु जोटा आमे सुनिबा। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर क्यूरी, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन बचपन किड्स क्लिनिक में। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, आइडियल वेट एंड हाइट ऑफ योर किड। काफ़ी पेरेंट्स आके पूछते हैं कि क्या मैडम हमारे बच्चे का वेट और हाइट उसके एज के हिसाब से है, क्या वो प्रॉपरली ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इंडियन सिनारियो में यूजुअली पेरेंट्स कंपेयर बहुत कर लेते हैं कि बाजू वाले का बच्चा या फिर हमारे फैमिली में एक और बच्चा है, उसका वेट अच्छा है, उसका हाइट अच्छा है, तो क्या मेरे बच्चे का उस हिसाब से ठीक है। दूसरा उनको ये रहता है कि मोटा बच्चा मतलब हेल्दी बच्चा, और जब भी पतला बच्चा होगा तो उसको बोलेंगे अनहेल्दी, जबकि हेल्थ एंड वेट इतना रिलेटेड नहीं है जितना किया जा रहा है। तो ये मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए ये वीडियो है। वीडियो के अंत तक हम डिस्कस करेंगे एक नवजात शिशु का वजन आइडियली कितना होना चाहिए, मतलब उसका वेट और उसका लेंथ दोनों ही जब बर्थ हुआ है तब आपने देखा होगा मेजर होता है। कभी कभी उसकी हेड सरकमफ्रेंस मतलब उसका सर का नाप भी लिया जाता है। आपने देखा होगा डॉक्टर तुरंत बर्थ के बाद उसका वेट करते हैं। तो वो आइडियली क्या होना चाहिए, मतलब एवरेज बच्चे का क्या होता है, फिर उसकी बढ़ोतरी कैसे होती है कि कैसे वो ग्रो करता है। अगर आपके बच्चे को आपको देखना है कि वो ग्रो बराबर कर रहा है तो आप उसके लिए कैसे एक्टिवली मेजर कर सकते हो, और ग्रोथ चार्ट क्या है, और ग्रोथ चार्ट में आपको अपने बच्चे का वेट हाइट किस तरह से मॉनिटर करना है, ये हम वीडियो के एंड तक समझेंगे। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को हिट करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। वेलकम टू बचपन किड्स क्लिनिक एजुकेशनल सीरीज। तो समझते हैं नॉर्मल नवजात शिशु का वेट, लेंथ और हेड सरकमफ्रेंस कितनी होनी चाहिए। जो भी नवजात शिशु फुल टर्म है, फुल टर्म का मतलब यहाँ पे है 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी जब कंप्लीट होता है उसके बाद अगर डिलीवर हुआ है तो उसे बोलते हैं फुल टर्म। अगर 37 वीक्स से पहले हुआ है तो उसको आप बोलोगे प्री टर्म। तो 37 वीक्स के बाद डिलीवर होने वाले बच्चों के यूजुअली वेट होते हैं 2.5 मतलब 2.5 से 4 किलो के बीच में। अगर 2.5 किलो से कम वेट है तो उसे बोलते हैं लो बर्थ वेट। यहाँ ध्यान रखिए, अगर बच्चा प्री टर्म मतलब 37 वीक से पहले बर्थ हुआ है तो उसका वेट ऑब्वियसली थोड़ा कम हो सकता है और उसको आप टर्म बच्चे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरा, उसका नॉर्मल टर्म बेबी का लेंथ जो आप शायद इन्फेंटोमीटर से या फिर आप मेजर टेप से डॉक्टर आपके मेजर करेंगे वो यूजुअली होता है 50 सेंटीमीटर, मतलब 45 to 55 के बीच में होता है। और उनका हेड सरकमफ्रेंस जो होता है वो यूजुअली होता है 33 to 37 सेंटीमीटर के बीच में।
अब समझते हैं इस वेट की बढ़ोतरी, मतलब इसका ग्रोथ किस हिसाब से होता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपके न्यूबॉर्न का वेट है, जो नवजात शिशु है उसका वेट है 3 किलो, तो ये डबल होता है बाय 4 to 6 मंथ्स। किसी का 4.5 महीने पे हो गया, किसी का 5 महीने पे, अराउंड 6 मंथ्स हर बच्चे का डबल से ऊपर ही हो जाता है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जिस बच्चे का 3 किलो था उसको आप 2.5 किलो बर्थ वेट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। 3 किलो वाले का डबल होगा 6 और 2.5 वाले का होगा 5। तो आपको बस ये देखना है कि आपके बच्चे का क्या बर्थ वेट था। उसके बाद ट्रिपल द बर्थ वेट, मतलब 3 गुना बर्थ वेट होता है 1 साल पे। उसके बाद होता है 4 टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स द बर्थ वेट, ये होता है 2 साल पे। और उसके बाद बच्चे का 6 साल तक 2-2 किलो वजन बढ़ता रहेगा। और उसके बाद 6 साल से 12 साल अंटिल प्यूबर्टी जो बोलते हैं हम, उस टाइम तक आपको 3 किलो वजन हर साल बढ़ेगा। अब डिस्कस करते हैं लेंथ या हाइट में बढ़ोतरी कैसे होती है। तो जिस बच्चे का 50 सेंटीमीटर बर्थ लेंथ है तो उसका बाय 6 मंथ्स, मतलब 6 महीने तक उसका 66 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। इसी का जो बर्थ लेंथ है सपोज 50 सेंटीमीटर, उसका 85% मतलब 25 सेंटीमीटर बढ़ोतरी होती है बाय 1 ईयर ऑफ एज। 1 साल पे आप बच्चे को 75 सेंटीमीटर एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाय 2 ईयर्स उसको 87 सेंटीमीटर आप हाइट एक्सपेक्ट कर सकते हो। और आपको ये ध्यान रखना है बर्थ लेंथ जो भी है उसका डबल बाय 4 ईयर्स हो जाता है। मतलब 4 साल पे जो अगर 50 सेंटीमीटर है बर्थ की, तो वो 100 सेंटीमीटर का हो जाएगा बाय 4 ईयर्स। और उसके बाद की आपको हर साल 6 सेंटीमीटर ऐड करना है अप टिल 12 ईयर्स और प्यूबर्टी जो भी आप बोलो वो। और 12 साल में 3 गुना हो जाता है। जैसे 50 सेंटीमीटर बर्थ लेंथ है तो 12 साल पे अप्रोक्सीमेटली 3 गुना हाइट हो जाती है। ये इसका इंक्रीज है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा प्रॉपरली ग्रो कर रहा है? कोई ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग भी तो होनी चाहिए कि बच्चा ठीक से ग्रो कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए कुछ एजुकेशनल टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि ग्रोथ चार्ट या फिर ग्रोथ ट्रैक करने के कैलकुलेटर भी आते हैं। ग्रोथ ट्रैकिंग कैलकुलेटर जैसे आते हैं या ग्रोथ चार्ट आते हैं। अब आपको ग्रोथ चार्ट उसके लिए पढ़ना सीखना पड़ेगा। मोस्टली पेरेंट्स क्या करते हैं, गूगल पे देख लेते हैं कि ग्रोथ चार्ट के हिसाब से मेरे बच्चे का ग्रोथ बराबर है कि नहीं। जो गूगल पे अवेलेबल है, कभी कभी CDC ग्रोथ चार्ट्स अवेलेबल है और वो US के बच्चों को ध्यान में लेके किया गया है। तो अगर आपको इंडियन सिनारियो के हिसाब से करना है तो आप कोशिश करिए कि WHO या IAP ग्रोथ चार्ट आपको मिले, क्योंकि वो ज़्यादा इंडियन बच्चों को देख के किया गया है। और इस ग्रोथ चार्ट में आपको अपने बच्चे को कैसे पॉइंट करना है, कौन से टाइम पे करना है, वो सब इस वीडियो में आगे समझेंगे। तो ग्रोथ चार्ट समझने से पहले कुछ पॉइंट समझने ज़रूरी है कि आपको उसमें गलती ना कर दो आप। फर्स्ट पॉइंट, आपको गर्ल्स और बॉयज़ का चार्ट अलग से लेना है, क्योंकि उनकी हाइट और वेट अलग होती है एज के हिसाब से, और बॉयज़ और गर्ल्स का अलग चार्ट रहता है। नेक्स्ट चीज़ है, उसमें होता है एक 3rd परसेंटाइल और एक होता है 97th परसेंटाइल। आपको देखना है कि 94% मतलब ज़्यादातर बच्चे इसके बीच में ही फॉल करते हैं। अगर आपका बच्चा 3rd परसेंटाइल से नीचे है या 97 परसेंटाइल से ऊपर है तो ये कंसर्न वाली चीज़ होनी चाहिए और उस टाइम पे आपको डॉक्टर को बताना ज़रूरी है। याद रखिए, ये स्कूल के ग्रेड्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि जितना ऊपर मेरा बच्चा उतना अच्छा, ऐसा नहीं है। जितना 97 के ऊपर भी अच्छा नहीं है, उसको भी ओबेसिटी या मोटापा कंसिडर करना है। तो 97 परसेंटाइल के ऊपर भी अच्छी बात नहीं है। दूसरा, आपको ग्रोथ चार्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पे बस कर दिया ऐसा नहीं है। आपको वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखना है कि 6 महीने पे इतना है, 1 ईयर पे इतना है, 2 ईयर पे, तो वो चार्ट आपको ग्रोइंग लाइन मिले वो देखना ज़रूरी है। और अगर उसमें कहीं पे फॉल्टरिंग आ रही है, जैसे आपको फ्लैट हो रहा है चार्ट या डिप डाउन हो रहा है, तो ये कंसर्न की बात है, तभी ये चिंताजनक बात है और तभी आपको डॉक्टर को ज़रूर मिलना है। ये एक एजुकेशनल टूल है, अगर इसमें समझ नहीं आ रही है तो डॉक्टर को बताना डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है।
एक चीज़ और याद रखनी है, बर्थ वेट को नहीं भूल जाना है। 2.7 kg का अगर बच्चा है उसको आप 3.7 kg बर्थ वेट के साथ उसी के चार्ट में कंपेयर करोगे, वो सही नहीं है। आपको ध्यान रखना है बर्थ वेट और हाइट के हिसाब से आपका पूरा चार्ट डिफरेंट होगा पूरा। तो बर्थ लेंथ और बर्थ वेट को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा। थैंक यू। तो यही वीडियो रे हमें देखिथिलु कि पिला मानक कंपेयर करबाको हेबो नै और हमर इंडिया पिला मानक पाए आईएपी नै तो डब्ल्यूएचओ रो ग्रोथ चार्ट यूज करबा आवश्यक होची। जियो मानक पाए अलगा होची और को मानक अलगा तो और गुटे समय रे से चार्ट रे देखि करी आयो मोर पिला बोलो करी बोर्ड नै करके कोई हेबो नै से ग्रोथ चार्ट रे मासो मासो सेटा को मार्क करी करी से कर्व केमती माने बोलो से दुईटा लाइन से दिखा हेतिला सेटारे मजरे होची कि नाही नै तो फ्लैट हेउची कि नै तो तोले पड़ी जाउची सेटा देखिबा तो फ्लैट होई जाउची करके कोइले सेटारे हमें डॉक्टर पासे जिबा को आवश्यक होची। हाइट अनुसार एज नो थिले सेटा को स्टैंडर्ड ग्रोथ कहबे। वेट एज अनुसार वेट कम थिले अंडर वेट करके कहबे। दुई प्रकार रो मालन्यूट्रिशन रह जाय। तो हेल्थी बेबी तो थिबार अछि करके कहले we have to concentrate on a balanced diet। तांको केमती पौष्टिक आहार हमें देव सेटा को हमें मने रखबा को आवश्यक होची। तो बैलेंस डाइट करके कहले सेटारे दे हैव टू बी फ्रूट्स माने फळो थिबार अछि, ग्रेन्स थिबार अछि माने राइस गहुम चावल गहुम तापरे बाजरा ग्रेन्स थिबा को आवश्यक होची। तापर प्रोटीन्स दरकार अछि। प्रोटीन्स माने दाल राजमा एंती जिंस दरकार अछि। तापर पनी परिवा के मिसा पौष्टि जीवा नै ए सब मिसी करे बैलेंस डाइट हेउछि। हमें देखिथिलु प्रथम 6 मास रे देर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क माने मां रो खीरो छोड़ा और किछि देबा नै। खीरो नाही बेसी खोरा हेउछि, पानी टिके पिलाई देबा, बॉटल से तो पिलाई देबा एटा करबा नाही। मारो खीरो रे रोग निरोधक शक्ति मिसा अछि। मारो खीरो रे पिला मनकु जेतिकी पौष्टिक आहार छो मास पे दरकार अछि सेति पौष्टिक आहार मारो खीरो रे रहि जाय छी। और किछि बाहर तारो नो देले पिला मनकु इन्फेक्शन वगैरह हेबा तारो हम रक्षा करि हेबो। 6 मास ऊपरे पिला माने गुटे वर्ष पर आइला पर्यंत गुटे वर्ष आइला बेले तक सप्ताह को गुटे नुआ जो पिला मानकु इंट्रोड्यूस करबा को आवश्यक अछि। फर्स्ट रे दिन को गुटे कटोरी खाद्य तापरे सेकंड तापरे दिन को 2 थर खाद्य देबा आरंभ करले गुटे वर्ष हेला बेले तक सप्ताह को गुटे नुआ जिंस अपना ऐड करे पारे। गुटे सप्ताह आलू तापरे कैरेट तापरे अलगा अलगा सब्जी अंडा सेटा गुटे गुटे सप्ताह छाडी करे से मानको इंट्रोड्यूस करबा को आवश्यक होछि। पिला मानको जीर्ण शक्ति बोलो बारे डेवलप हे थिबो नै। तो धीरे धीरे जोने गुटे गुटे प्रकार फूड ऐड करथिले से मानको से आदत बनबा पे सहाय्य हेजिबो। तापरे गुटे वर्ष हेला बेले पिला माने अडल्ट्स माने बड़ लोक माने को खाद्य खाउछन्ती से सब मानको आदत बनाबा को आवश्यक अछि। तापरे वर्ष डारो 2 वर्ष भितरे हमें देखियो जो केमती पिला माने बढबार अछि। बेसी शीघ्र बढी जेबे पिला माने 2 वर्ष भितरे सेही ग्रोथ थिबा पाए हमें चेष्टा करबार। तो आमे देबा पौष्टिक आहार रे लोपो थिले कोनो हेबो से विषय हमें एबे देखिबा। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रे हमें फर्स्ट देखियो जो बैलेंस्ड डाइट विषय रे देखियो जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स,
मिनरल्स और पानी आवश्यक होची एटा कोटारे मिसा लोको थिले malnutrition deficiency diseases करके हमें कहू होचु फर्स्ट विषय होची आयोडीन कम हेले पिला मानकर मेंटल डेवलपमेंट कम हे जिवो से मानकर बुद्धि बोलो करी डेवलप हेबने आज पिला माने जन थायराइड टेस्ट करा होचु अनेक पिला मानको हाइपोथायराइडिज्म थारो जनम हेउचंदी से मानको संगे संगे ट्रीटमेंट देले से मानकर डेवलपमेंट बोलो हे जिवो तापरे हमें देखो जो आयरन डेफिशिएंसी इंडियन सिनारियो रे हमें देखो जो कि मां माने जने परे डिलीवरी संगे संगे हे जाउछ गुटे बस हेला बेले गौरी प्रेग्नेंट हे करी से संगे संगे डिलीवरी हेबाटा हमें रखिले बेसी भलो गुटे छुआ और गुटे छुआ मधरे 2 वर्ष ने तो 3 वर्ष रो गैप दे करी अनेक रोग निरोधक ऑप्शंस दिया हेउची मां मानकु जा माने आपण माने आंगनवाड़ी को जाई करे पचार पारबे ने तो डॉक्टर पाखे आसी करे पचार पारबे आपनको कोन सूट हेबो सेटा आपण व्यवहार करे पारबे से 2-3 वर्ष प्रेग्नेंट नो हेबा पाए आपण औषध डिसाइड करे पारबे तापरे हमें सेटा नो मानकर मधुरे थिला आयरन कम हे करे पिला माने आयरन डेफिशिएंसी से तो जन्म हे पारे मां को मिसा आयरन डेफिशिएंसी आयरन रो डेफिशिएंसी हे पारे आयरन को खाद्य रे रोई ची करके हमें देखिले सी फूड रे होची माने फिर माछो मानकर रे तापरे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रे लिवर रे तापरे डाली रे चना डाली रे तापरे काजू टोमाटो अंडा रे सेटा प्रबल वारे होची तो आयरन डेफिशिएंसी आयरन कम थिले आंखी दोला दुसबो बेसी हालिया लागुतेबो गोडो हाथ बेसी बिंदु थाए तापरे बेसी इरिटेबल थाए बेसी खांदा काटी कोइ थाए पारे पिला माने खाद्य नो खाइ पारे ए समय रे एटा देखिले अपने डॉक्टर पाखे जिबा को आवश्यक थिबो अरे वजन अनुसार तांको आयरन रो गुटिका दिया है जी टॉनिक दिया है जी नेक्स्ट हमें देखो जो विटामिन बी डेफिशिएंसी विषय हमें देखो विटामिन ए जो स्लाइड पूरे आसे पारे विटामिन ए होची ग्रीन रेड कलर ने तो ऑरेंज कलर वेजिटेबल्स रे बेसी थाई पारे थिबो कैरेट्स टोमेटो तापरे माने गाजर और टोमेटो रे बेसी थाई पारे सेटा अधिको आंसर नेबा पाई चेष्टा करबार विटामिन ए रो डेफिशिएंसी थिले आंखी अफेक्ट हेबो नाइट ब्लाइंडनेस करके हमें कहूछु फर्स्ट एटा थिबो कि आंखी रे जो ड्राइनेस आसीबो तो व्हेन देयर इज ड्राइनेस इन द आई सेटा को जीरोसिस कोई देबे कॉर्नियल तापरे कंजंक्टिवाइटिस करके कहबे तापरे बाइटॉट स्पॉट्स बोले दोला दोला स्पॉट्स आंखे रे दे पारे से विषय सेटा देखिले संगे संगे अपनो विटामिन ए डेफिशिएंसी थाई पारे बोले डॉक्टर पाखे पहुंचबे और औषध दिया है जो आंगनवाड़ी सेंटर तारो आंगनवाड़ी रे अपनो रजिस्टर कर ले 6 मास को थोरे ने तो वर्षों को थोरे से विटामिन ए रो डोज दिया है उची सब पिला मानको नेक्स्ट होची विटामिन बी वाटर सॉल्युबल विटामिन बी को थिबारो एही विटामिन रो डेफिशिएंसी हमें केते दिनों पे हमें खाद्य नो खाइले संगे संगे विटामिन बी डेफिशिएंसी जना पड़े मु एठी आसला पर्याने को तरो देखि छे गा पार्टी रे गा हेले ओ मुझे ज्वर हेची सेति पर पार्टी रे गा ने पार्टी रे गा हेची विटामिन बी रो डेफिशिएंसी थाई करे तो विटामिन बी रो 6 तरह रो विटामिन बी होची B1 B2 B3 B6 B9 B12 को B6 और B12 विटामिन कम हेले एनीमिया हे पारे B3 और B9 रे हमें देखिले डायरिया थाई पारे एनीमिया और डायरिया थाई पारे और विटामिन B3 रो डेफिशिएंसी रे डायरिया और डर्मेटोसिस एटी हमें देखो जो
कैसल कॉलर करके को आनीची एंटिटा डर्मेटोसिस माने स्किन प्रॉब्लम आसीबो तो सेते बेले विटामिन बी रो टैबलेट खाइले सेटा शीघ्र बोलो हेजिबो विटामिन बी2 राइबोफ्लेविनोइड डेफिशिएंसी देखिले गा एकोन गा पाटी रो कोनारे गा हेजिबो तापरे जीवो ऊपर माने जियोग्राफिकल टर्म करके कहबे जुडा धोला धोला मार्क परी हेजिबो तो सेटा अछि ग्लॉसाइटिस खिलोसिस एंगुलर स्टोमेटाइटिस के कहबे तो एटा सब राइबोफ्लेविन टैबलेट खाइ माने डॉक्टर पाखरे जाय करी आपनो औषध खाइले बेसी बोलो विटामिन बी1 रो बेरी बेरी करके ओटे बीमारी अछि जेटा वेट और ड्राई बेरी बेरी अछि जेटा आपनो पिला माने बोलो नाइ करके कहले आपनो डॉक्टर पाखरे जाय करी तापरे ट्रीटमेंट ने बाटारे बेसी बोलो थिबो तापरे विटामिन बी को खाद्य रे रोइछि करके देखले हमें होल ग्रेन्स माने चावलो गहुमो होल ग्रेन्स रे थिबो मीट रे मिल्क रे अंडा लेग्यूम्स माने बीन्स सिम्बो बीन्स सेटा को लेग्यूम्स कोई थाए तापरे सनफ्लावर सीड्स रे नट्स रे तापरे सागो पनीपरिबा सागो रे तापरे फिश रे विटामिन बी है नेक्स्ट हमें देखो जो विटामिन सी is a water soluble vitamin it is therefore excess dose केबे न हे पारे एटा विटामिन सी टैबलेट्स एबे कोविड सीजन रे बेसी अधिक बारे अनेक लोक माने व्यवहार करछते इम्यूनिटी बिल्डअप करबो बोली निहाते इम्यूनिटी बिल्डअप करबो विटामिन सी रिच फ्रूट्स रे अधिक थाइबर स्पेशली citrus fruits माने लेमन ऑरेंजेस टोमेटो तापरे ब्रोकोली देखो जो कैप्सिकम हेटारे विटामिन सी अधिक थाइपर अधिक थिबो विटामिन सी कम हेले पाठी थारो ब्रश करला बेले रक्त पारे जिंजिवाइटिस है माने गम्स रो इन्फेक्शन हे पारे नाक थारो रक्त आसी पारे तापरे जॉइंट पेन्स ड्राई स्किन तापरे बालो स्प्लिट हे बाटा तापरे वुंड हीलिंग रे मिसा विटामिन सी अधिक बारे साहाय्य करि पारे स्लो वुंड हीलिंग हे पारे तो एटा सब हेउछि कथि कहले डॉक्टर को संपर्क करी तापरे विटामिन सी टैबलेट्स ने पर्टिकुलर लेले बोलो विटामिन डी पाखरे हमें आसो छु विटामिन डी रो डेफिशिएंसी विटामिन डी विटामिन ए और विटामिन डी दुईटा मिसा ऑयल सॉल्युबल विटामिन से करी अछि एटा अधिक अंश रे खायबाटा भलो नाही कोन पर माने हाइपर विटामिनोसिस और एक बीमारी अछि कम थिला बेले खाइबार अछि अधिक हेले और एक प्रकार बीमारी हे पारे डेफिशिएंसी बीमारी अछि तापरे हाइपर विटामिनोसिस बीमारी मिसा अछि तो विटामिन डी रिच फूड्स कोनो बोले को चले पनीर अछि खीरो चीज अंडा मशरूम्स अछि तो एटा सब विटामिन डी रिच फूड अछि येलो कलर कॉड लिवर ऑयल तो विटामिन डी डेफिशिएंसी कम थिले बोन्स बेसी सॉफ्ट हे जिवो तो बोन इज ने जो नॉक नीस एमती हे करे दिबा नॉक नीस एटा दुईटा हमें टिके बोडला पिला मनकर मध्ये रे जुटा सानो थिले से माने पिला विटामिन डी डेफिशिएंसी थिबारो एटा एमती डिफॉर्मिटी से तो से माने जीवन सारा रहबा को पड़ी पारे प्रत्येक बारे सानो पिला माने जन्मर जन्म हेतिला पिला मानको सकाले टिके खरा को 10-15 मिनिट पाए से मानको दिखाइले ए विटामिन डी रो डेफिशिएंसी को हमें अवॉइड करि पारे तो एटी रे हमें आज रो पोषण अभियान रो एटा शेष भाग को हमें आसी अच्छो यही वीडियो पोषण माह on the occasion of Poshan Maah, this video has been produced. I want to play it for you so that it will be a revision of all that we have gone through yet for the past 1 hour.
देश उम्मीद से देश उम्मीद से है, करो पोषणम करो पोषणम 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 देश उम्मीद से है, करो पोषणम 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 देश उम्मीद से है, करो पोषणम। मुख से झांकता है भारत का कल, अन्न प्राशन करो स्वस्थ बचपन करो, माँ का संसार हो दूध सा प्यार हो, नया एक जीवन करो, खोल के आंखें सपने खड़े सामने, सारे सपनों का मिलकर करो पोषणम करो पोषणम 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 देश उम्मीद से है, करो पोषणम देश उम्मीद से है, पोषणम करो पोषणम 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 देश उम्मीद है, करो पोषणम। नन्ही नन्ही हथेली में आकाश है, पंख बेताब हैं उनमें, मुस्कुराती हुई बेटियां कह रही, देखो मंजिल का रास्ता यही पास है, कर रहा मिलके ये देश सारे जतन, कर रहा मिलके ये देश सारे जतन सारे जतन। पोषणम 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 देश से है, करो पोषणम देश उम्मीद से है, करो पोषणम करो पोषणम 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 देश उम्मीद से है, करो पोषणम। ध्यान माँ का जो रखे जन्म वो सफल, बात छोटी सी है पर बड़ा है ये हल, स्वच्छ संसार में गूंजे किलकारियां, स्वच्छ जल में नहाएगा भारत का पल, एक संकल्प लेके चले आज हम, एक संकल्प लेके चले आज हम, चले आज हम। पोषणम 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 देश उम्मीद से है, करो पोषणम देश उम्मीद से है, करो पोषणम करो पोषणम 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 देश उम्मीद से है, करो पोषणम 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 पोषणम
ଏଥିରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କହୁଛି ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମ୍ୟାଡାମକୁ IMSD ର ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। Recording in progress. Okay, dear parents and students, we want to thank you for patiently listening everything. And above all, on behalf of our Parents Teacher Association of IMSD School, we want to thank Dr. Susan. I think it's clearly visible that she has prepared a lot and presented a lot for spreading the awareness. She got even the statistics, the malnutrition and malnourished children in Malkangiri, and all the things about balanced diet and about the diseases and about how a breastfeeding woman should take care of herself and a lot of things. But we want to continue from here. If we simply stop with what we hear today, there is no use in this program. So therefore, माँ बाबा माने समस्ते पिला माने समस्ते टिके सुनंतु हमारो गोटे wish होची ए सप्ताह till the 30th of September 30 तारीख जाए we are celebrating this week, this Rashtriya Poshan Month. So rather than simply stopping with these kind of programs, we want to do it practically. So we want to encourage children every day. Sabu dina ame gote task deba ku chahu. Example, khali ro task. Example, pilamane gore gote plant, vegetable plant, plant koribe. It may be brinjal or it may be tomato or potato, anything. We encourage all the children. We will give tasks like this. You can plant a small vegetable plant or anything that is highly nutrient. It may be a doll or anything. And you may take a photo and send the photo to principal ma'am's number. So we will give every day. We will give tasks like that. We would be really happy and encouraged if any of the students do that. So this is not like a competition. We want this to be like a chain. आजिकल पिला माने WhatsApp status रे बेकार विषय बहुत बड़ा को शेयर करूछन एमती आइस बकेट चैलेंज कहउछन ए चैलेंज से चैलेंज डायर गेम बोली बहुत बेकार विषय करूछन किंतु हमरो विश अछि पिला माने और 4 दिन अछि ये 4 दिन रे गोटे टास्क हमें देबु एग्जांपल गोटे दिन से माने गोटे प्लान करिवे आउ गोटे दिन से माने किछि ना किछि जिनिस. It may be vegetable or it may be some rice or it may be some Horlicks. Semane kiniki ako pagativa daridra pilamane. If anyone or any two or any family, we request the parent. We cannot compel. This is not an order or command from us, but we request. Let us initiate this kind of thinking in our students, our children. So we request the support from parents. So माँ बाप माने दया करी अपन माने मध्य आपनकर पिला छन टिके एनकरेज करन ए प्रकार विषय रे से माने टिके इन्वॉल्व करवार अछि. आउ गोटे दिन हमें अवेयरनेस मध्य करबा. Children can draw some awareness drawing
or even they may spread the awareness. They may talk with their friends and the family, friends, or neighbors, or some relatives. Aji hame bahut kichi विषय सीखली. विशेष कर I want to tell one thing. Malnutrition बोले केवल दरिद्र पिला माने poor children only they are suffering. It is not like that. Even rich children also they are suffering from that because of the lack of awareness. आजिकली पिला माने खाली मैगी खाउछंती और कुरकुरे खाउछंती. एटारे की न्यूट्रिशन होची किछि नै. So we should be aware about that. पिला माने बोलो vegetables देबार होची. Even the green moong dal रे बहुत प्रोटीन होची. Nearly chicken रे जेति होची सेति की से प्रकार डाल गुडा करे. हमें पिला माने बोलो we should be very careful in selecting the diet. खाली से मैगी बोले 5 मिनिट रे रेडी हबो सेटा दबा एडजस्ट करी जाओ बोली से प्रकार नै मां बापा माने मते दया करी टिके सुनंतु प्लान करंतु आजी